हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे सेट 2 दैट कंटेन्स 10 न्यूमेरिकल्स which are very important to upcoming ADRE 2.0 as well as APSC examinations. For set 1 you can check my previous video. So let's start. First question, 98 trophies were distributed to some boys in a group. Each boy in the group got twice as many of the trophies as the number of boys. So suppose हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ boys are x. Okay, number of boys are x. So each boy in the group got twice as many of the trophy. So each boy got twice as many of trophy. So number of trophies will be कितना होगा? Twice x. Okay, so already we know that 98 trophies were distributed. Already it is given. So क्या होगा? According to the question, x into twice x will be total number of trophies are 98. So answer will be x square. So 2 and 98 क्या cancel हो जाएगा 49. So x square is 49. So x will be 7. So what is x? X is the number of boys. तो number of boys तो निकालने के लिए बोला है, number of boys in the group. So x is 7. That is option B is correct. Next, if cos theta is a by b, then sec theta क्या होगा? So we know that relation between cos theta and sec theta क्या है? Cos theta is 1 by sec theta और sec theta is equal to 1 by cos theta. तो cos theta given क्या है? a by b. So 1 by a by b is b by a. So sec theta is b by a. So answer will be option B. The perimeter of an equilateral triangle is 6 centimeter. The area of the triangle is. So perimeter, suppose P is the perimeter. So given P is equal to 6 centimeter. So for equilateral triangle, consider A is the side. Okay, A क्या है? Side है. So equilateral triangle का कितना side है? 3 sides are there. So perimeter will be 3A and 3 is given 6 centimeter. So A will be 2. Side कितना है? 2 centimeter side है. Therefore area क्या होगा? Suppose area is A. So area is the formula for area of equilateral triangle is A is equal to root 3 divided by 4 into side square. Side कितना है? A square. So root 3 divided by 4. A कितना है? 2 square. So 2 square is 4. 4 cancel. So area will be root 3 centimeter square. So option will be D. Option D is correct. The value of this, ये जो चारों क्वांटिटी दिया गया इसका वैल्यू क्या होगा? सो वी नो दैट 0.04 इसका वैल्यू कितना होगा? सो 4 डिवाइडेड बाय 100. ओके, सिमिलरली 1.44 रूट ओवर 1.44 कितना होगा? 144 डिवाइडेड बाय 100. देन रूट ओवर 1.69 इज रूट ओवर 169 डिवाइडेड बाय 100. देन 0.0009 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा? ये इस पर्टिकुलर चीज क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू इज 9 डिवाइडेड बाय दिस. सो रूट ओवर 4 डिवाइडेड बाय 100 इज 2 बाय 10. ओके, एंड रूट ओवर 1.44 तो ये है, इसका आंसर क्या होगा? रूट ओवर 144 इज 12. देन रूट ओवर 100 इज 10. वी नो दैट 10. 169 का रूट ओवर कितना होगा? 13 एंड रूट ओवर 100 कितना होगा? 10. इसका क्या होगा? रूट ओवर 9 इज 3. देन रूट ओवर दिस क्वांटिटी इज 100. सो वैल्यू हम लोग को पता चल गया है. सो सिंपली पुट द वैल्यूज 2 by 10 प्लस 12 by 10 प्लस 13 by 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 100. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 173 divided by 100, that is 1.73. So 1.73 option is correct. Very simple question. Next question is 45% of a number is same as 30% of another number. So consider first number. So first number is x and the second number or another number is y. हम लोग क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर.
So according to the question, 45% of a first number, 45% of first number is x, okay, is equal to 30% of another number. So 30% मतलब 30 divided by this number y. दोनों निकालना क्या है? रेशियो हम लोग को निकालना है, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर. दैट इज फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकंड नंबर इज y. x y निकालना है. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 100 कैंसिल, सो x के नीचे हम लोग y लेके आ जाएंगे, तो और 30 के नीचे 45 लेके आ जाएंगे. अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2/3. सो x by y इज इक्वल टू 2/3. आंसर इज 2/3. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Lisa deposits money in her saving bank in such a way that every next day her deposit amount is 20 rupees more than her previous day deposit. Okay, suppose मंडे को इसने क्या किया, लीजा ने 12 रुपीज डिपोजिट किया, और ट्यूसडे को उसने क्या किया, ट्यूसडे को 12 मोर देन प्रीवियस डिपोजिट डे. दैट इज ट्यूसडे को क्या होगा, 12 प्लस 12 मोर देन हर प्रीवियस डे. प्रीवियस डे को उसने 12 डिपोजिट किया था, तो ट्यूसडे को क्या होगा, 12 प्लस 12. देन वेडनेसडे को क्या होगा, 12 प्लस 12. ओके, सिमिलरली इंक्रीज होगा ये. इफ शी स्टार्ट्स हर डिपोजिट विथ 12 ऑन द फर्स्ट डे, ऑलरेडी गिवन है. द टोटल अमाउंट ऑफ डिपोजिट बाय लीजा एट द एंड ऑफ 30 डेज. तो ऐसे करके कितना होगा, उसने कितना डेज कंप्लीट किया, 30 डेज कंप्लीट किया. तो 30 डेज मतलब 12 प्लस कितना टाइम्स होगा, इंटू 30 टाइम्स. ओके, तो टोटल सम कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड बाय लीजा कितना होगा एंड द एंड ऑफ 30 डेज. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो समेशन विल बी 12 प्लस 12 इंटू 2. ओके, देन 12 इंटू 3 प्लस कितना गया, अप टू 30 ना, 30. सो 12 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 30. ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. सो ये क्या है, कौन सा सीरीज है, ये है हम लोग का एपी सीरीज. और एपी सीरीज का समेशन क्या है, समेशन ऑफ एपी सीरीज. एपी सीरीज का सम क्या है, सम है n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी. डी इज द कॉमन डिफरेंस. ओके, सो 12 यहाँ पे क्या होगा, n/2. n कितना है यहाँ पे, n है हम लोग का 30. ओके, सो n 30 मतलब 30 डिवाइडेड बाई 2. ओके, n/2 ना, n इज 30. सो 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस ए क्या है, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितना है, 1. एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे क्या है, 1. 2 इंटू 1 प्लस n कितना है, 30 ऑलरेडी बोल दिया है मैंने, 30 माइनस 1. और डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी दो टर्म ले लो, 2 माइनस 1 इज 1 और 3 माइनस 2 इज 1. सो कॉमन डिफरेंस इज 1. ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग का समेशन जो है, ये तो हम लोग सम निकाल रहे हैं ना, सम मतलब टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 30 डेज. तो समेशन कितना होगा, सो एट द एंड ऑफ 30 डेज समेशन होगा हम लोग का, ये आंसर आएगा 5580. ओके, 5580. तो टोटल अमाउंट कितना है, 5580. सो एट द एंड ऑफ 30 डेज Lisa deposited this much amount. Okay, so option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा सेट. हम लोग क्या निकालना है, डाटा सेट गिवन है, मीडियन निकालना है. सो मीडियन निकालने के लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला है. दो फॉर्मूला क्या है, अगर n मतलब क्या है, नंबर्स. ओके, n अगर ऑड होगा, इफ n इज ऑड, देन मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होगा, मीडियन विल बी n plus 1 divided by 2 th term. Okay, if n is even, if n is even, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा हम लोग के पास n/2 th term plus n/2 plus 1 term. Okay, divided by 2.
तो हम लोग जो क्वेश्चन है इसमें चेक कर लेते हैं कि ये जो n है n ऑड है या इवन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो n इज 13। सो 13 इज एन ऑड नंबर। ओके, तो डाटा सेट जो गिवन है इसमें कितना नंबर है, 13 नंबर है। 13 इज ऑड नंबर, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, this term, so 14 by 2, 14 by 2 is 7, सेवेंथ टर्म। तो ये जो डाटा सेट है, डाटा सेट में सेवेंथ टर्म कौन सा है, सेवेंथ टर्म इज, लेट्स फाइंड आउट, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ इज सेवेंथ टर्म। सो आंसर क्या होगा, सेवेंथ टर्म इज 7, आंसर होगा 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो रूट ओवर, वी नो दैट रूट ओवर 225 by 729. So root over 225 is, we know that 15. Okay, root over 225 is 15 and root over 729, root over 729 is 27. Similarly, root over 25 divided by 144. So root over 25 is 5 and 144, root over 144 is 12. Then root over 16, root over 16 divided by 2, root over 16 is 4 and 81 is 9. So put the value, simply put the values. So this much, this equal to 15 divided by 27 plus 5 by 12. Okay, 5 by 12, then not plus, it is minus. Okay, it is minus, then minus 4 by 9. Okay, तो इसका वैल्यू कितना है, ये है, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है। अगर हम लोग सॉल्व एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस 11 by 36। आंसर क्या आएगा, माइनस 11 by 36। सो माइनस 11 by 36, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्ट्स हिज जर्नी एट 1 PM फ्रॉम ए लोकेशन P with a speed of 1 meter per second. Then B starts his journey from the same location P along the same direction at 1:10 PM with a speed of 2 meter per second. If B meets at A at the location Q, then distance PQ is, very very important question। तो यहाँ पे बोला है लोकेशन P और क्या है Q, लोकेशन P एंड Q। सो P से स्टार्ट यानी क्या है, कितना बजे, 1 PM को, कितना बजे, 1 PM को, और 10 मिनट बाद, अच्छा ठीक है, ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है, ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, ए का स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। और ठीक 10 मिनट बाद बी ने क्या किया, स्टार्ट किया सेम लोकेशन से, सेम डायरेक्शन में जर्नी के। ठीक है, तो 10 मिनट बाद मतलब सपोज बी यहाँ पे है, उसका स्पीड कितना है, बी का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। 10 मिनट बाद जर्नी बी ने स्टार्ट किया है, ये तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, 1 PM में स्टार्ट कर लिया है और बी का कितना है 1:10 को। सो इस 10 मिनट में ए क्या होगा, जब बी स्टार्ट करेगा, जब बी 1:10 को स्टार्ट करेगा जर्नी, तो ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी ए सम डिस्टेंस कवर कर लेगा, सम डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, कवर कर लेगा, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस कवर कर लेगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस ए ने कवर किया है बी स्टार्ट करने से पहले, हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ए इज 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम बी 10 मिनट बाद स्टार्ट करेगा और ए 10 मिनट मतलब पहले। सो ऑलरेडी 10 मिनट में डिस्टेंस ए ने कवर कर लिया है। सो 10 मिनट्स, टाइम कितना होगा 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स मतलब कितना है 60 into 10 seconds। ओके, एंड हियर वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 600 मीटर। सो ए ने 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 600 मीटर। ओके, तो 600 मीटर जब ए कवर कर लेगा तब बी स्टार्ट करेगा जर्नी। ओके, सो इफ बी मीट्स ए एट द लोकेशन क्यू, तो लोकेशन यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो क्या करेगा बी और ए इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या करेगा, मीट करेगा।
इफ बी मीट्स एट द लोकेशन क्यू देन द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं। सो हेयर दिस पॉइंट इज योर पी एंड दिस इज योर बी, ओके, एट 1:10 PM। और सेम अगर टाइम हम लोग ले लेंगे, सेम टाइम में दैट इज 1:10 PM में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए ने डिस्टेंस कवर किया 600 मीटर, ओके, ए ने डिस्टेंस कितना कवर किया 600 मीटर। और हम लोग को जाना कहाँ पे है, हम लोग को मतलब जो ए और बी कहाँ पे मीट करेंगे, क्यू पॉइंट में मीट करेंगे, ओके। सो ये डिस्टेंस तो हम लोग को पता नहीं है, ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं एक्स, ओके। सो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि टाइम क्या है, टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी सेम। अगर टाइम अगर सेम नहीं होगा तो यहाँ पे क्यू पॉइंट में मीट नहीं कर पाएंगे, तो टाइम शुड बी सेम। सो व्हाट इज टाइम ऑफ ए, तो ए जो है ये एक डिस्टेंस जितना टाइम में कवर करेगा, ये जो ए है, जो पर्टिकुलर जो एक डिस्टेंस कवर जितना टाइम में कवर करेगा, सेम टाइम में बी कितना करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तभी जाके मीट करेगा। सो टाइम ऑफ ए is ta and he will cover the distance x, okay, this should be equal to time of b to cover the same distance मतलब कितना, ये डिस्टेंस b को भी कवर करना पड़ेगा। तो अगर b कवर नहीं कर पाएगा तो मीट नहीं कर पाएगा। सो टाइम ऑफ a मीन्स वी नो दैट डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना होगा, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना है, ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिवाइडेड बाय 1। और बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 1 मतलब कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए इज ऑलरेडी यू फाउंड दैट वेलोसिटी ऑफ ए इज 1 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकंड, ओके। सो टाइम ऑफ ए इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए। सो टाइम कितना है, x by 1, ठीक है। सिमिलरली बी क्या होगा, बी होगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना है बी को, 600 प्लस x, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा क्यू में आने के लिए। और बी का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो 2x इज इक्वल टू 600 प्लस x, x कितना होगा, x होगा हम लोग का 600 मीटर, x हम लोग कितना है 600 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है दैट इफ बी मीट्स ए एट द लोकेशन क्यू देन द डिस्टेंस पी क्यू। सो डिस्टेंस पी क्यू कितना होगा, डिस्टेंस पी क्यू विल बी 600 मीटर प्लस 600 मीटर। सो आंसर विल बी दिस मच, दैट इज 1.2 किलोमीटर। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इज सी, 1.2 किलोमीटर, ओके। Next question, the price of an article is decreased by 40%. The price of an article is decreased by 40%, then increased by 20%. So first decreased, then increased. The net change in the price. Simple formula. Formula is net change. Net change in price is equal to, suppose A is the decreased, okay, decreased value, plus b is the increased value, plus a into b divided by 100, okay, percent. So here since the decreased value मतलब क्या है -40 और increased value मतलब +20, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो -40 प्लस 20 प्लस a कितना है -40, b कितना है +20 डिवाइडेड बाई 100 परसेंट, ओके, परसेंट। सो आंसर इज -20 और यहाँ पे क्या होगा 0 0 कैंसिल। सो -20 माइनस 4 into 2 is 8 परसेंट, दैट इज -28%। सो -28% मतलब क्या है, डिक्रीज। द नेट चेंज इन द प्राइस विल डिक्रीज बाय -28%, ओके। सो नेट चेंज कितना होगा 28% होगा, कितना होगा -28% मतलब क्या है, डिक्रीज। It decreases by 28%. So answer will be option D. Okay. Okay. So this is the last question of the video. In the next video, I will discuss set 3. Till then, keep watching competitive classes. Thank you.